Good morning, sir. Good morning. Please start with the introduction. Thank you, sir, for this opportunity to introduce me. Sir, as you already mentioned, my name is Shritama. Sir, I am a Bengali. However, I have never lived in the state of West Bengal. For the major part of my life, I have stayed in Madhya Pradesh, and that is where I have completed my education from. I have done my graduation from Rajmata Vijayaraja Scindia Krishi Vishwavidyalaya, Gwalior, and I secured third rank all over university during my graduation. And then currently, I'm pursuing my post graduation in the subject of agronomy from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya, Jabalpur. And sir, I'm interested in singing and painting, and I've also participated in national level one act play, skit, and mime. Okay, great. You said your hobby is singing also. So, who is your favorite singer? So in Bollywood, it would be Arijit Singh, and sir, other than that, sir, I like Coldplay and I like Pratik Kuhad. And which song of Arijit Singh is your favorite? Sir, a lot of songs like Channa Meria, and there are a lot of songs. Like I enjoy all his songs. All songs are nice of Arijit Singh. Like I like, sir. Okay. And if we talk about two states, one is West Bengal and one is Madhya Pradesh. So, what is the basic difference you have seen in the agriculture? Sir, to be very honest, sir, I have never lived in West Bengal. As I said, sir, I have always lived outside due to my father's service. But sir, all that I've known from studying is that there, sir, rice is mainly cultivated, and sir, vegetables is also like one of the like it is the top producer of vegetables. And in Madhya Pradesh, what I've seen is so the cropping patterns. Sir, I've lived in Gwalior. So Gwalior, sir, the major cropping pattern was sir bajra in the Kharif season, sir bajra, in some places rice as well, and sir bajra, maize, and in winter majorly wheat and mustard. So that is all I know about the cropping pattern. So, Shitama, if we talk about the condition of farmer in Madhya Pradesh, what do you think? Is it good or bad? If it is good, then how? And if it is bad, then what can be the solution to improve their condition? Sir, according to me, sir, it is neither very good or nor, sir, it is below, like it is not very bad. Sir, they're somewhere in between, but there is a lot of scope for improvement, sir, definitely. And sir, what I feel the poor condition of farmers all over India is that, sir, their economic condition, whatever the returns that they expect from their produce, they do not get that due to sir lack of marketing conditions, lack of storage. So that's why, sir, they do not get the amount of money that they deserve or they expect out of their produce. And so it can be obviously improved by improving processing, improving storage facilities like cold storage, and by marketing facilities by giving them more, like government is doing a lot, sir, like Kisan Rail, Kisan Udan. So a lot of things are being done for farmers, just the more awareness is required. Okay, Shitama, last question on my side. Yeah. Suppose if I'm a farmer from Madhya Pradesh, I'm a illiterate farmer, I don't know anything, but I know very well how to cultivate the products. So I'm a farmer belongs to soya state, so I'm growing soya bean in my field. But I'm not a rich farmer, I'm not earning sufficient. Even I'm producing soya bean. Now, what can be the suggestion from your side? And don't tell me the name of scheme from government side. Just tell me right now, I'm in front of you in your state, in your district. Where should I go? What should I do to increase my income? So to increase productivity of soya bean. I just want to improve my income. Maybe you're going to improve my productivity, marketing, processing, anything. But just tell me Okay. how I can do it right now. Sir, I will suggest you to, sir, other than soya bean, like soya bean, you are already cultivating, and sir, you can improve your productivity by, sir, like doing farm mechanization, or sir, taking up processing. Like you can also directly produce oil, or if you have the money, if you have the capital to do it, then I would encourage you to go for processing, like to get out oil and then market it. And sir, the most viable solution would be that, sir, I'll promote you to indulge yourself in other allied activities like, say, beekeeping. Like, sir, sericulture is not possible in the conditions of MP, sir, but beekeeping, I will suggest you for fisheries, and sir, I'll motivate for allied activities, sir. Yeah. Okay, Shritama, tell me, if a person is above 60 years age, so will you give loan to him or her?
Ma'am, that depends whether they have a proper plan or not. If they can repay the loan, if they have a proper plan, if they can tell me if they have a proper income and a means to return the amount, then yes, ma'am, I will definitely. Okay, fine. So just tell me, if you are given a target that you have to achieve or you have to attempt this much KCC in this month, so how will you approach the farmer in those conditions? Because in at that time you have to approach the farmer. Farmer is not coming, but you have to increase the business. So how will you approach him or her? Ma'am, I will go to I'll go to villages, I'll go to the farmers and I'll try to gather them. Like I'll try to conduct some group sessions and I'll explain it to them that how getting KCC or how it will help them, how they can get interest subvention, how it will benefit them rather than going to some money lender, some local money lender, how this will help them and it can benefit them and how they will get benefit out of it. I'll try to explain them in their language in the most explainable way possible. ओके फाइन. सो मैंने बहुत बार ये नोटिस किया कि फार्मर्स के माइंड में ये चीज रहती है कि अगर बैंक में हम अपना पैसा रखेंगे तो क्या पता हमारा पैसा ऑटोमेटिकली कट होता रहता है. बहुत सारे फार्मर्स के माइंड में ये चीजें होती हैं. ट्रेडिशनल थिंकर्स दे आर, है ना. तो आप उनकी ये वाली थिंकिंग कैसे इम्प्रूव करोगे? बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज द बिजनेस, सो हाउ विल यू हेल्प इट आउट? मैम, द बेस्ट वे पॉसिबल, मैम सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैम उनको बताना कि ऐसा नहीं होता है, उनको एक्सप्लेन करना. मैम उनको कोई भी जो ये चीजें होती है सुनी सुनाई होती है, उनको ऐसा डायरेक्ट मैम पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है उनका. तो मैम आई विल एनकरेज देम कि आप रख के देखिए, आप एक बार करके देखिए और अगर ऐसा हो तो आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई विल हेल्प यू थ्रू आउट इट. अगर ऐसा होता है और आप मेरे पास आइए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी और आई विल अश्योर देम कि ऐसा नहीं होगा उनके साथ. मैम Okay, fine. So what is the difference between check and DD? Ma'am, check is basically, ma'am, prepaid hota hai. Sorry, ma'am. Sorry. DD is prepaid and check is postpaid, ma'am. Like DD में क्या होगा, ma'am, कि पहले ही amount आपको deposit करना पड़ेगा. Then the DD will be issued in the name of whatever organization. And check, ma'am, क्या होगा कि वो postpaid होगा. आप मतलब आपने issue कर दिया, उसके बाद भी अगर आप रोक सकते हैं उस check को, अगर आप नहीं मतलब पे करना चाहते हैं तो you can stop the check. ओके फाइन. सो आप अपने बैंक अकाउंट को कौन से डिफरेंट वे से ऑपरेट कर सकते हो? मैम वी कैन ऑपरेट इट, मैम एक तो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप ब्रांच में जाइए. इसके अलावा मैम द न्यू टेक्नोलॉजीज आर लाइक नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग. मैम यूपीआई भी आ गया, अब तो यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली. मैम दीज आर द वेज. ओके फाइन. ओके डन. श्रीतमा, आपने मेंशन किया विलेज में कैंपेन करेंगी, लोगों को सजेस्ट करेंगी, अवेयर करेंगी. ओके, सो यू हैव अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. So many person are listening to you. So tell me or tell the village about any of the scheme which can benefit the farmers of Madhya Pradesh and try to explain in Hindi or it should be local language. Sir, sorry, your voice got distorted in between. Sir, I'm sorry. Can you repeat it, please? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इस टाइम पे एक विलेज के अंदर, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपको किसी एक स्कीम के बारे में बताना है जो फार्मर्स के लिए बेनिफिट, फार्मर्स को बेनिफिट देगी इस टाइम पे प्रेजेंटली इंडिया में, वो रनिंग होनी चाहिए. And try to speak in Hindi or it should be local language. Okay, sir. Okay. सभी फार्मर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी जैसे आप फार्मिंग करते हैं तो आपको लोन की जरूरत पड़ती है. आपको कोई भी इनपुट खरीदना है तो आपको लोन की जरूरत पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके लिए एक स्कीम लाई है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड. किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे आप 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं किसी भी चीज के लिए. आपको कोई मतलब कोई खेती का अगर कोई सामान खरीदना है, आपको बीज खरीदना है या आपको कुछ भी ऐसी चीज खरीदनी है जो आपको जरूरत है खेती के लिए, तो आप उसके लिए लोन ले सकते हैं बैंक से 3 लाख तक का. और उसके लिए आपको इंटरेस्ट नॉर्मली आपको 7% का लगेगा. लेकिन अगर आप केसीसी लेते हैं और अगर आप टाइम पे रीपे करते हैं उस लोन को, अगर आप टाइम पे रीपे कर देंगे तो आपको एक इंटरेस्ट में कटौती होगी और आपको 7% की जगह केवल 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और इसमें ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए आप 1.6 मतलब कि 1.5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको इसमें कोई कोलैटरल या कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपको ये फायदा कर सकता है. और आप बैंक से लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगा
और आपको अगले साल के लिए भी फायदा होगा क्योंकि आपको आसानी से लोन मिल जाएंगे फिर। श्वेतमा, अगर हमने लोन ले लिया और मुझे जो लोन है वो एक साथ अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा अमाउंट चाहिए, तो क्या कुछ तरीका है कि मैं थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर सकूं उसे? सर आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, ओके, परफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिन एंड पासवर्ड? सर पिन एंड पासवर्ड, या sir, all I know they mean the same thing. Maybe a pin is short for four digits, and password can be long. मतलब उसमें और भी like it can be of alphabets. It can contain characters. तो आपने अपने एटीएम का पिन रखा हुआ है या पासवर्ड? सर एटीएम का पिन है। क्या है पिन आपके एटीएम का? सर वो तो नहीं बता सकते। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इट वाज परफेक्ट, इट वाज नाइस, गुड, अच्छा था एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत देर से वेट कर रहा था ऐसे इंटरव्यू का। बट नाउ माय पार्ट इज टू गिव यू सजेशन, तो कुछ कुछ नेगेटिव बातें पॉइंट आउट कर दूंगा। शुरू में तो नहीं मिल रहा था, बट लास्ट में आपने दे दिया मुझे वो पॉइंट, व्हेन आई आस्क्ड मनी विथड्रॉ। तो ये तो बताना पड़ेगा ना फार्मर को, आप बैंक का पार्ट है, सो बाय यूजिंग केसीसी कार्ड उनको मिलता है ना, सो लाइक वी आर विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम द एटीएम, तो सेम वे में वो भी विथड्रॉ कर सकते हैं। ओके सर। तो थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है। हाँ, मैं एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट भी बता देती हूँ, बुरा पॉइंट भी बता देती हूँ। आपने वो जो सर ने फार्मर कंडीशन वाला जो क्वेश्चन पूछा था, आपने उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया। दोनों कंडीशन बताई कि ना बुरी है ना ज्यादा अच्छी। हर टाइम जब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछे जाए, उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है। ना तो बहुत अच्छा बताना होता है, ना ही बहुत बुरा बताना होता है, ऐसे ही बैलेंस करके चलना होता है। इनकेस वहां पर अगर आपसे भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे, वहां पर भी ऐसे ही बैलेंस करके चलना चीजों को, ठीक है। एंड सेकेंडली, जब सर ने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि बताइए आपको फार्मर को लोन के बारे में बताना है कि कोई ऐसी प्रेजेंट स्कीम, सो यू चोज केसीसी, राइट। तो वहां पर लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। इस वर्ड को अगर यूज करोगे, क्या पता वो कहीं और से अरेंज कर ले पैसे, पैसों की जरूरत पड़ेगी। एंड सेकेंडली, 3 लाख तक पर हमें सब्सिडी मिलती है। लोन आप कितना मर्जी ले सकते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ जाता है। इस नॉलेज को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। लोन कैन बी ऑफ 40-50 लाख ऑल्सो, ठीक है, बट सब्सिडी सिर्फ 3 लाख तक मिलेगी। वो पॉइंट है वहां पे मेंशन, जो अच्छा पॉइंट मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदरवाइज इट वाज गुड, कॉन्फिडेंस वाज आल्सो गुड एंड कम्युनिकेशन वाज आल्सो गुड। हाँ, थैंक यू चलो, मैम। आपके फेस पे कॉन्फिडेंस था, एक स्माइल थी। लास्ट में आई आस्क्ड फॉर पिन, आपने उसको मना भी किया, बट यू हैड अ स्माइल ऑन योर फेस, ठीक लगा मुझे, रूड नहीं लगा कि हाँ मैं नहीं दूंगी पिन, ऐसा हाँ, तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली, अच्छा था वहां वो। पर रूड होके नहीं बताना है, बट हाँ, ऐसे ही एंड बताना है सॉफ्टली। एक सोयाबीन वाले केस में सजेशन दे दूंगा मैं, इसमें ये नहीं मानूंगा आपने गलत आंसर किया, बट हाँ थोड़ा सजेशन दे सकता हूँ। व्हेन आई आस्क के मैं सोयाबीन ग्रोइंग फार्मर एंड हाउ कैन आई इंप्रूव माय इनकम, तो आपने मुझे सोयाबीन से शिफ्ट कर दिया है ना। शिफ्टिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। मैं भी अगर आपको बोलूंगा ना कि आपको जो एमपी के अंदर ही दे रहा हूँ और एमपी से बाहर दे रहा हूँ, दोनों केस में आप भी समझती हैं, आप शिफ्टिंग में डिफिकल्ट मतलब फील करेंगी। तो फार्मर को शिफ्ट नहीं करवाओ इस टाइम पे। फार्मर की वीकनेस प्रोडक्शन के साथ नहीं है, उसकी वीकनेस मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के साथ है। तो यू कैन टेल देम कि बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इट इज हैपनिंग विद एवरी फार्मर। वो या तो प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करके बेचना प्रेफर करता है अपने ही फील्ड से, कि जो व्यापारी है वो आके ले जाए, या फिर वो लोकल मंडी में जाके सेल करेगा। इससे दूर फार्मर जाता ही नहीं है। एंड लेट्स सपोज मैं आपके विलेज से हूं और मेरी मंडी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जहां पे प्राइस मुझे मेरे प्रोडक्ट का मिला 20 रुपीज पर केजी। एंड एक वो मंडी है जो 20 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर दूर है, प्राइस मुझे मिलेगा 25 रुपीज पर केजी। तो इफ आई एम मूविंग 20 किलोमीटर, तो 40 में कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आज के टाइम में। और ये सिर्फ आपके लिए आंसर नहीं है, इट कैन बी द सजेशन फॉर एवरी फार्मर, कि अगर वो आज के टाइम में थोड़ा सा मार्केटिंग को इंप्रूव कर लेगा ना, बहुत इनकम एग्रीकल्चर के अंदर। बिकॉज कितने सारे कमर्शियल पीपल इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के अंदर, जो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ बाय स्टोर एंड सेल, और इतने में लाखों कमाते हैं वो। फार्मर ये कर सकता है अगर हम उसकी मार्केटिंग को थोड़ा सा ठीक करें, कि लोकल मंडी नहीं, टारगेट मंडी के अंदर सेल कीजिए। एंड कुछ एक ऑनलाइन पोर्टल को, सब लोगों के लिए सेम सजेशन, इट्स नॉट फ्रॉम श्वेतमा ओनली, कि ऑनलाइन पोर्टल्स को पढ़ लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी एप्स हैं, प्राइवेट कुछ कंपनीज ऑफर कर रही है, कुछ गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो मंडी के प्राइसेस अपडेट करते हैं। एंड दिस इज वेरी इजी फॉर फार्मर। थोड़ा सा सीख लेगा, प्राइसेस का पता कर लेगा, तो टारगेट मंडी में सेल करे प्रोडक्ट का अच्छा रेट मिल सकता है उसे। एग्जैक्टली, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से अगर इंक्लूड करोगे ना, क्योंकि वो डेफिनेटली वहां पर फार्मर की कंडीशन से रिलेटेड, हमारे क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आप ये हाईलाइटेड पॉइंट्स उनको दे दोगे ना, तो उनको फील होता है कि नहीं, इसको नॉलेज है चीजों के बारे में। और उनको वैसे भी प्रैक्टिकल नॉलेज ही चाहिए, कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी है। थ्योरेटिकल तो आप लोगों ने पेपर में बताई दी है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको होना चाहिए अच्छे से पता।
यस मैम। मैम सर एक्चुअली मुझे एक डाउट पूछना था सर, मैं पूछ सकती हूँ? प्लीज प्लीज। हम्म। सर जैसे इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैम इंटीग्रेशन होता है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। एग्जैक्टली मैं यही वाला चाह रही थी आपसे सुनना, मेरे माइंड में यही था कि आप कुछ ऐसे इंक्लूड कर दो। सोयाबीन तो ग्रो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और चीज भी ग्रो करो उसी फील्ड के विद इन, तो डेफिनेटली उससे तो मिलेगा मिलेगा, साथ में कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। यस मैम। तो हम्म। मैम जैसे अगर फार्मर चाहे और उसके पास कैपिटल हो, तो मैम वो हम्म। ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करके बेच सकता है ना, तो मैम उसको उस चीज का भी फायदा होगा। अगर उसके पास हो मैम कैपिटल, तो मैम वो ये भी इंटीग्रेट कर सकता है, आगे का फंक्शन भी ले सकता है ना मैम। मैम इसमें ये एक और पॉइंट। पॉइंट आपका ऐड ऑन करूं, यस अगर मैम। आप वहां पर ये बोलोगे तो आप ये भी तो कर सकते हो कि मैं मार्केटिंग के थ्रू भी उसको ये बता सकता हूँ कि आप एग्री इंफ्रा में लोन ले लो, तो डेफिनेटली बिजनेस यस भी ग्रो मैम। हो गया, हमारा बिजनेस भी ग्रो यस हो गया, मैम। उसका भी फायदा हो गया, तो आपको दोनों की ग्रोथ वहां पे दिखा दी ना आपने। यस मैम। तो यस। ऐसे करना जरूर, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। ठीक है। जी 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 जी। एक और पर्सनल चैट में क्वेश्चन है, मैं इसका भी आंसर करता हूँ। कैन वी से दैट वी विल सजेस्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? मैं श्रीतमा के पॉइंट को पॉइंट आउट करने वाला था व्हेन शी सेड के ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले। ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर रिसेंटली जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग जो लोकल लेवल पे निकालते हैं, वो जो कच्चे तेल की खानी वाला कॉन्सेप्ट है, वो लोग तो लोकल है ना, वो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, एक फर्म नहीं है, वो लोग टैक्स पे नहीं करते, तो इससे काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर। तो वो वाला जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है थोड़ा सा जीएसटी के दायरे में चल रहा है, इशू हो सकता है। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये तो कंट्रोवर्शियल है ही है। गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत अच्छा है, फार्मर सड़ के बैठ गए थे, अब तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी वापस ले लिया। नाउ द क्वेश्चन आ गया गवर्नमेंट के फेस पे कि अगर सही थे तो वापस क्यों लिया, हम्म। और गलत थे तो फिर दिया ही क्यों था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आंसर्स के लिए, हाँ मैं मेरे लिए बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ। मैं अगर होता तो मैं कंट्रोवर्सी वाला आंसर देता, बिकॉज वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मैं आंसर करूंगा उसे। बट अगर आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिक्स के अंदर, इन बातों के अंदर, तो ऐसा ऐसा आंसर कीजिए। नहीं तो अवॉइड कीजिए वो आंसर जो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा दे। सर अगर ये क्वेश्चन आते हैं कि सर जैसे फार्म बिल्स पे अगर हमारे व्यूज जानना चाहे कि आपका क्या टेक है फार्म बिल्स पे, कि उन्हें क्या अच्छे थे बुरे थे, तो सर हमें क्या बोलना चाहिए? अगेन मॉडरेट करना पड़ेगा आंसर्स को। अगर मैं रियलिटी बोलूं, एक बार आपके आंसर को साइड में रखूं ना, तो इस टाइम पे एक सिंगल पर्सन भी क्लियर, हाँ इंडिया में इकोनॉमिक्स लोग हो सकते हैं, वरना ये जो सब यूट्यूबर्स जो मेरे जैसे लोग ओपिनियन देते रहेंगे, वो खुद को नहीं पता ये बिल्स थे क्या, स्टडी किसी ने नहीं करा ओरिजिनल बिल्स को, बस यूट्यूब पे सुन के पास करते हैं। नाउ व्हाट कैन बी द आंसर फ्रॉम योर साइड? मॉडरेट, है ना, कि जिस तरह से बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र किया गया, तो हमने भी ऐसा स्टडी किया ना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अच्छा है, बिकॉज रिस्क कम हो जाता है। 86% फार्मर्स आर पुअर एंड मार्जिनल। अब ये वो जो 2 एकड़ से 3 एकड़ से कम वाला फार्मर है, उसके पास रिस्क बेरिंग एबिलिटी नहीं है ना, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड, एंड दोस बिल्स वर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बट द वे दे इम्प्लीमेंटेड, या फिर इम्प्लीमेंट जो होने वाला था, शायद कुछ कमी थी, इसीलिए उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो हम फार्मर्स को भी साथ लेके चले जाएंगे कि उनकी साइड से उन्हें पॉसिबिलिटी या फिर पॉजिटिविटी नहीं दिख रही थी, और गवर्नमेंट के भी साइड में जाओ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्चुअली बोलूंगा तो इकोनॉमिक्स ने आज तक यही पढ़ाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत नहीं होता। इवन वी यूज टू डू दीज थिंग्स, है ना। आपने अगर इंश्योरेंस कहीं से लिया है, तो इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ प्रीमियम के फॉर्म में, एक्सीडेंट हुआ तो मुझे मेरी गाड़ी का सारा रिस्क कवर आपसे चाहिए। तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज कवरिंग अ रिस्क। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज गुड, बट द वे दे इंट्रोड्यूस द बिल, वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलत था, है ना। तो मॉडरेट कर दीजिए आंसर को। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे सर द इंटेंशन वाज गुड बिहाइंड द लॉज, बट द फार्मर्स वर नॉट रेडी फॉर इट। या द एग्जैक्टली फार्मर्स वी यू कैन कैन से। ऑल्सो से कॉन्सेप्ट वाज गुड, इंटेंशन की जगह कॉन्सेप्ट वाज गुड। ठीक है, यस मैम। क्योंकि इंटेंशन तो फिर वो थोड़ा सा डीप थिंकिंग में चला जाता है ना, बट कॉन्सेप्ट वाज गुड। बट एक अवेयरनेस क्रिएट करने की भी वो भी थोड़ा सा कमी रहेगी, है ना। अच्छी तरह से वो लोग यस। समझा नहीं पाए, अच्छा था बुरा था जो भी था, उनको जो भी कमी लगी वो अवेयरनेस जनरेशन की वजह से भी थी वो कमी। ठीक है, ओके। आप उस अकॉर्डिंग उसको कर लेना। ओके मैम, थैंक यू सो मच सर मैम। वेलकम। मोस्ट वेलकम। ओके डन गाइस, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पर्सन, होप सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इट्स नॉट अबाउट लैंग्वेज। हाँ उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए सभी की, बट इट नॉट वाज अबाउट लैंग्वेज कि वो इंग्लिश अच्छा बोले तो इंटरव्यू अच्छा गया, है ना। वो अच्छे आंसर्स बोल रही थी, ना कि अच्छी लैंग्वेज बोल रही थी। सो सेम फॉर यू,
आपको हिंदी तो एटलीस्ट आती है, ऐसा तो नहीं है, और हिंदी में कोई कंफर्टेबल नहीं है सदर्न पार्ट से, तो आपको लोकल लैंग्वेज आती है। तो इट्स नॉट अबाउट हिंदी लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज कि आप उसको किस तरह से उस टाइम पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सब लोग जानते हो कि बॉल हर प्लेयर के सामने आती है, लेकिन उस बॉल पे वो क्लीन बोल्ड होगा या फिर वो छक्का लगाएगा, ये वो सिचुएशन हैंडलिंग है, वो कैसे हैंडल कर पाता है।